اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے اور اس اچھے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر کے ایکس گورنر، سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پھر مودی اور ان کی حکومت کو نشانہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ستیہ پال ملک جموں کشمیر کے ایکس گورنر رہ چکے ہیں اور بڑے بے باک ہیں۔ انہوں نے ہی باقاعدہ پہلے ایسے گورنر ہیں جنہوں نے مودی اور مودی کی پارٹی کی پول کھولنے کا کھل کر کام کیا۔ حالانکہ ان کو سزا بھی مل رہی ہے حکومت کی جانب سے، CBI ED کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ڈرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے پھر خطرناک انکشاف کیا اور کھل کر مودی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ 2019 میں لوک سبھا الیکشن فوجیوں کی لاشوں پر لڑا گیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ BJP نے اور مودی جی نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ فوجیوں کو مروایا اور پھر ملک کی جنتا کو بیوقوف بنایا، اور فوجیوں کی، ہمارے جوانوں کی لاش پر مودی اور BJP نے الیکشن لڑا۔ ستیہ پال ملک نے یہ بھی کہا کہ اگر پلوامہ حملے کی جانچ ہوتی تو راجناتھ سنگھ کو بھی استعفیٰ دینا پڑتا۔ تو خیر، جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک لگاتار مودی اور مودی حکومت کی پول کھولنے کا کام کر رہے ہیں۔ وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ خیر، کیونکہ کچھ لوگوں کو خدا نے ایسا پیدا کیا ہوتا ہے۔ وہیں پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے پلوامہ میں 14 فروری 2019 کو CRPF کے قافلے پر جو دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں ہمارے 40 جوان شہید ہوئے تھے، اس حملے پر اس وقت بھی کئی سوال اٹھائے گئے تھے، لیکن مودی اور مودی حکومت نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اور پھر انہوں نے کھل کر ہی کہا کہ 2019 کا الیکشن سرجیکل اسٹرائک، جھوٹی اسٹرائک، 40 ہمارے جوان شہید ہوئے، اور 2019 کا الیکشن مودی جی اور BJP نے ملک کو دھوکہ دے کر فوجیوں کی لاش پر جیتا ہے۔ آئیے ناظرین، 2000 کی نوٹ کو لے کر بڑی خبر آ رہی۔ وہ جو چھی نیوز تھا اس پہ جو اینکر تھے، اور ایسے ہی ہمارا وہ جو سسودھیر ہے، ان لوگوں کا اتنا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اس وقت بھی دلالی کیے تھے حکومت کی، جنتا کو بیوقوف بنایا تھا، اور آج پھر اتنے میں سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ ان کو نیند کیسے آتی ہوگی، ان بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو، ان جھوٹوں کو اور سطح کے ان دلالوں کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہوگی، کیونکہ پورا ملک ان پر تھوک نہیں رہا ہے، موت رہا ہے۔ اور اب پہلے الگ بات کہہ رہے تھے 2000 کے نوٹ کے بارے میں، اب الگ بات کہہ رہے ہیں۔ تو خیر، پی چدمبرم جو کانگریس کے قداور نیتا ہے، انہوں نے کہا کہ کالا دھن ذخیرہ کرنے والوں کی اب یہ BJP کہہ رہی ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ نے بڑی مدد کی۔ تو چدمبرم کہتے ہیں کہ BJP کی چال ناکام ہو گئی ہے۔
आम लोगों के पास 2000 रुपए के नोट नहीं है। 2000 रुपए के नोटों को गर्दिश से निकालने के लिए मरकज के इकदाम पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के लीडर चिदम्बरम ने पीर के रोज कहा कि काला धन का जखीरा करने वालों को अपना पैसा जमा करने में मदद की है 2000 रुपए की नोटों ने। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि 2000 रुपए की नोटों को लेकर फिर मसाइल खड़े हो रहे हैं और लोग बैंकों में फिर वही पुरानी जो लाइन लगती थी वो बैंकों में लग गई है। लोग परेशान हैं। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लंबी लंबी कतारें बैंक में लगी है और कई जगह तो नो चेंज का सामना है। वहीं पर आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि 2000 के नोट बंद होने पर फिक्र की कोई बात नहीं है। तुमको क्या फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि पैसा तो मुल्क का बर्बाद हो रहा और नुकसान तो जनता का हो रहा, मुल्क का नुकसान हो रहा। तुमको तो कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है। नाज़रीन, लॉरेंस बिश्नोई, ये सब 3 पाठ लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, मगर सस्ती शोहरत और झूठी शोहरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खैर, अभी खबर आ रही, लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया है, एनआईए के रूबरू उसने दावा किया है कि सलमान खान समेत 10 और बड़ी बड़ी शख्सियात मेरी हिट लिस्ट पर है। सलमान खान तो सरे फेरिस्त है। और खबरें आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। आप जानते हैं कि वजीर आला नीतीश कुमार तकरीबन सभी पार्टियों के लोगों से मिलकर मुलाकात कर रहे हैं और एक पूरे मुल्क की तमाम पार्टियों को महागठबंधन बनाकर नफरतों वाली पार्टी जो मुल्क में आग लगा रही है, मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रही है, मुल्क में दंगे और फसाद तकसीम करवा रही है और पूरा इलेक्शन जो पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमानों के नफरती मुद्दे पर लड़ रही है, उस नफरती पार्टी को मुल्क से साफ करना और मुल्क को उस गंदी पार्टी से पाक करने के लिए नीतीश कुमार जो है बिहार के वजीर आला तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मुलाकात की और लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र अपोजिशन के इत्तेहाद पर तबादले ख्याल किया। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। रियासत आसाम से एक बड़ी अजीब खबर आ रही है। जी हाँ, अब क्या कहेंगे आप इसको, क्या इसे भी तालिबानी हुकूमत कहेंगे? आसाम से यह खबर आ रही है, वही आसाम जहां का मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, मगर इसका जहर, जी हाँ, जो कोबरा से भी खतरनाक था, कर्नाटक के हिंदुओं ने इनको जूते मारा और कामयाब होने नहीं दिया। वही मुख्यमंत्री जो अपने स्टेट में 600 मदरसे बनकर आ चुका है, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करता है, अब उसी मुख्यमंत्री ने और उसी हुकूमत ने यह कहा स्कूलों के बारे में कि टीचर्स जीन्स, टी शर्ट्स और जो लेडीज हमारी बहनें हैं वो लेगिंग्स पहन कर नहीं आएंगी। असातिज़ा के, टीचर्स के टी शर्ट, लेगिंग्स वगैरह, जीन्स वगैरह पहनने पर आसाम हुकूमत ने बंदी लगा दी है। आसाम हुकूमत ने बाकायदा टीचर्स के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। आसाम के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें सरकारी स्कूलों के टीचर्स, खा वो मर्द हों या औरतें, उन्हें कुछ ऐसे मखसूस लिबास पहनने की आदत को छोड़ना होगा जिन्हें पार्टी में पहना जाता है। उन्हें सादा कपड़ों में स्कूल आना होगा। तब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या तालिबान हुकूमत के असरात आसाम तक पहुंच चुके हैं? मणिपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, ये वही मणिपुर है कि मणिपुर चल रहा था और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मणिपुर पर कुछ बात करने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो कर्नाटक में फूल अपने ऊपर बरसा रहे थे और कर्नाटक में सभाएं और प्रचार कर रहे थे। मणिपुर जल रहा था। खैर, अब उसी मणिपुर से यह खबर आ रही कि वहां पर फिर
आग भड़क उठी, तशद्दुद भड़क उठा। शरपसंदों ने 4 घरों को आग लगा दिया। फौज और आसाम राइफल्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। न्यू चिक्कौन अम्फाल मशरक में गुज़िश्ता कल एक खास तबके के दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद न्यू चिक्कौन में नामालूम शरपसंदों ने 4 घरों को आग के हवाले कर दिया। तशद्दुद से बेहाल नजर आ रहे मणिपुर में एक बार फिर तशद्दुद की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्क की बेटियां 1 महीने से आंदोलन कर रही है कि बीजेपी मोदी जी से कह रही है कि मोदी जी आपने तो नारा लगाया था बेटी बचाओ, अब हम आपसे 1 महीने से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी का नेता हमारी इज्जतों से खेल रहा है, इस दरिंदे को, इस आतंकी को गिरफ्तार करो। मगर 1 महीना हो गया मोदी जी, तुमने हमारी रत्ती बराबर भी सुनवाई नहीं की। अब वही पहलवानों बेटियों को लेकर खबर आ रही है कि उन पहलवानों ने ब्रजभूषण के नार्को टेस्ट के चैलेंज को कबूल किया, क्योंकि ब्रजभूषण का ऐसा कहना था। पहले ये बेटियां कह रही थी कि ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करें, तो ब्रजभूषण ने घुमाकर ये कहा कि बजरंग पुनिया वगैरह इनका भी नार्को टेस्ट किया जाए, मैं तैयार हूं। तो अब इन बेटों ने और इन बेटियों ने ये कह दिया कि बिल्कुल ब्रजभूषण के नार्को टेस्ट का जो चैलेंज है हमारे लिए वो कबूल है, हमारा नार्को टेस्ट करवाया जाए, हम सभी टेस्ट के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नार्को टेस्ट बीजेपी की निगरानी में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। यानी किसी भी तरीके से ये पहलवान बेटियां और पहलवान बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि आतंकी और हम पर जुल्म करने वाला, हमारी इज्जतों से खेलने वाला ब्रजभूषण, इसको गिरफ्तार किया जाए और हमें बचाया जाए, बेटियों को बचाया जाए। मगर ब्रजभूषण लाडला बीजेपी का है, बड़ा करीबी लख्ते जिगर है, इसलिए आज तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगला दिन बड़ी खबर आ रही है हज के सफर को लेकर। जी हाँ, दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से पहली हज की परवाज अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो गई। और गुज़िश्ता 2 दिन पहले आपको याद होगा कि हाजियों का पहला काफिला लखनऊ उत्तर प्रदेश से रवाना हो गया, मदीना पहुंच गया। खैर, यानी ये खबर बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हज का सीजन शुरू हो चुका है और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से भी हाजियों का जाना शुरू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, इंदौर के हाजी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने हाजियों के साथ लूट मार लगा रखी है। हज कमेटी ने लूट मार लगा रखी है और इंदौर, अहमदाबाद और औरंगाबाद कुछ ऐसे इलाके हैं कि यहाँ के हाजियों को 70 हजार, बल्कि कुछ हाजियों को 85,000 86,000 के करीब तक के ज्यादा अदा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब हाजियों का हज करना मुश्किल हो रहा है। मगर अभी तक हुकूमत का इस पर या हज कमेटी का इस पर कोई जवाब नहीं आया। गुज़िश्ता 4 दिन पहले मुंबई में भी बाकायदा आंदोलन किया गया था हज कमेटी और हुकूमत के इस लूटमार के खिलाफ, मगर अभी तक हुकूमत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। अगला दिन जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, आप जानते हैं कि 2 दिन मौलाना अरशद मदनी शनिचर और इतवार को मुंबई शहर में थे। अंजुमन इस्लाम में प्रोग्राम्स हुए, तकरीबन 5 प्रोग्राम अंजुमन इस्लाम में हुए। ऐसे ही मैं आपको बताऊं कि फिर आज़ाद मैदान में आखिरी प्रोग्राम हुआ। अंजुमन इस्लाम और आज़ाद मैदान के प्रोग्राम में जमीयत उलमा जो मुल्क की सबसे बड़ी मुसलमानों की तंजीम है, और ऐसी तंजीम है, ऐसी संगठन है जमीयत उलमा के जिसका मुल्क पर एहसान है, क्योंकि इस संगठन ने मुल्क की आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए इस संगठन के बुजुर्गों ने, बड़ों ने, पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो खैर, जमीयत उलमा ने खुलकर ये कहा, मौलाना मदनी ने कहा कि महात्मा गांधी का कत्ल दर हकीकत मुल्क की जमहूरियत और सेकुलरिज्म का कत्ल था। मगर अफसोस कि उस वक़्त कांग्रेस को जो करना चाहिए था कातिलों के खिलाफ, कांग्रेस ने वो नहीं किया। जमीयत उलमा हिंद की क़यादत मुसलसल कांग्रेस को ये बताती रही थी और डिमांड करती रही थी कि देखो ये नफरत, ये फ़िरका परस्ती का जुनून मुल्क को और तुमको भी तबाह कर देगा। आखिर कांग्रेस ने सख्त पॉलिसी उस वक़्त इख्तियार नहीं की, जिसका नुकसान मुल्क को भी उठाना पड़ा और ख़ुद कांग्रेस का भी सफाया हो गया। तो खैर, मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस को भी खूब सुनाया, और बीजेपी जिसने कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ घटिया और नीच हरकत करके
पूरा नफरतों पर इलेक्शन लड़ा, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाली राजनीति करते हुए इलेक्शन लड़ा, तो मौलाना अरशद मदनी ने मुल्क में फैल रहे आतंकवाद, मुल्क में फैल रही फिरका फरस्ती और मुल्क में फैल रही नफरतें और नफरतों को फैलाने वालों को भी जमकर मौलाना अरशद मदनी ने लताड़ा। आइए नाज़रीन, दो बड़ी अफसोसनाक खबरें रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। एक तो आ रही पुणे से, जी हाँ, एक न्यूज़ पोर्टल से मिली खबरों के मुताबिक पुणे में इतवार की रात देर गए एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पुणे में एक वैंटी वैन का ब्रेक फेल हो गया, जिसमें 2 लोगों के हलाक होने और 5 लोगों के जख्मी होने और 6 गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की बड़ी खबर है। वहीं पर दूसरी खबर आ रही है बुल्ढाना से कि अकीदतमंदों की एक गाड़ी हादसे का शिकार, यानी भक्तों की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, श्रद्धालुओं की, जिसमें 3 लोग हलाक हुए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो दर्शन करके वापस अपने घर आ रहे थे और घर सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।